افسوسناک خبر کے حوالے سے قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف شہباز شریف کی والدہ انتقال کر گئیں۔ میاں نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کا انتقال ایون فیلڈ ہاؤس لندن میں ہوا۔ نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم کی تدفین لاہور میں کی جائے گی۔ شہباز شریف کو ان کی والدہ حمزہ شہباز کو دادی کی وفات کی اطلاع دے دی گئی۔ شہباز شریف والدہ کے انتقال کی اطلاع ملتے ہی زار و قطار رو پڑے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا حکومت سے شہباز شریف کی فوری طور پر پے رول پر رہائی کا مطالبہ۔ مسلم لیگ نون کا پے رول پر شہباز شریف کی رہائی کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ۔ جانیں گے شاہد سپرا بتائے گا کس بیس پر یہ اجازت دی گئی ہے؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی والدہ محترمہ آج بقضاء الہی سے انتقال کر گئی ہیں۔ تھوڑی دیر قبل مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ اس دوران میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان جب والدہ کے انتقال پر بات ہوئی تو وہ آبدیدہ ہوئے اور غمگین ہوئے، چونکہ میاں شہباز شریف اس وقت غم سے نڈال ہیں، اور جب جیل انتظامیہ کی جانب سے ابتدائی طور پر ان کو ان کی والدہ ماجدہ کے انتقال کی خبر سنائی گئی تھی تو اس وقت بھی وہ زار و قطار رونا شروع ہو گئے تھے اور ان کی جانب سے دعائے مغفرت بھی کی گئی تھی۔ تو اس وقت جیل میں چونکہ قید ہیں کوٹ لکھپت جیل میں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف بھی اس وقت چونکہ جیل میں قید ہیں، تو اب وزیر قانون راجہ بشارت کی جانب سے اجازت دی گئی ہے کہ شہباز شریف والدہ ماجدہ کے انتقال کی وجہ سے آبدیدہ ہیں، غم زدہ ہیں اور غم سے نڈال ہیں، لہٰذا ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جو جیل میں اگر بات کی جائے تو میاں شہباز شریف جو ہیں ان کو بھی بی کلاس دی گئی ہے، جبکہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں ان کو بھی جیل میں بی کلاس دی گئی ہے، لیکن اس والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد باپ بیٹے کو اکٹھے رہنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس میں صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور انہی کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد اب شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف جو ہیں اس وقت جیل میں اکٹھے قید ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی بنیادی وجہ بتائی گئی ہے کہ والدہ ماجدہ کے انتقال پر شہباز شریف جو ہیں ان کو کافی غم ہے، وہ آبدیدہ ہیں اور غم سے نڈال ہونے کی بنیاد پر ان کو باپ بیٹے کو اکٹھے رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ شاہد سپرا، راجہ بشارت کو کیا کوئی درخواست دی گئی تھی عطا اللہ تارڑ کی جانب سے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، عطا اللہ تارڑ کی جانب سے جو درخواست دی گئی تھی اور جو کہا گیا تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے، اور ملاقات میں وہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں کہ تدفین کیسے ہوگی، جسد خاکی کی منتقلی اور اس کے ساتھ نماز جنازہ، اور اس ملاقات کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے درمیان جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ کروایا جائے، اور وہ جب رابطہ ہوا اور جیل انتظامیہ کے موجودگی میں یہ رابطہ ہوا تو اس وقت دونوں بھائی جو ہیں وہ غم سے نڈال ہوئے اور آبدیدہ ہوئے۔ یہ صرف ہمدردی کی بنیاد پر اور انسانی جو رویہ ہے اور ہمدردی ہے اس کی بنیاد پر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی جانب سے اجازت دی گئی ہے کہ میاں شہباز شریف چونکہ بیمار بھی ہیں اور والدہ کے انتقال پر وہ غم زدہ ہیں، غم سے نڈال ہیں، تو اس بنیاد پر ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کسی قسم کی درخواست نہیں دی گئی کہ ان کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے۔ شاہد سپرا، جیل ذرائع کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ یقیناً غم سے تو نڈال ہیں، شہباز شریف کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی دیکھیں، طبیعت ان کی پہلے بھی ناساز رہی، چند روز قبل بھی وہ ہاسپٹل گئے اور ان کے ٹیسٹ کروائے گئے، لیکن والدہ ماجدہ کا جب انتقال ہوا اور جس طرح بتایا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف ہوں یا چاہے میاں شہباز شریف ہوں، ان کے جو اپنی والدہ کے ساتھ جو محبت ہے، جو پیار ہے، وہ سب کے سامنے آیا ہے۔ تو اچانک جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور ان تک یہ جیل میں خبر پہنچی ہے تو جیل انتظامیہ جب ابتدائی طور پر ان کو بتایا ہے تو وہ غم سے نڈال ہیں۔ ان کی طبیعت جو ہے وہ اس وقت غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ غم سے نڈال ہونے کی بنیاد پر پنجاب حکومت اور صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی جانب سے اس میں اہم کردار ادا کیا گیا ہے کہ ان کے بیٹے کو ان کو ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ آپس میں غم جو ہے وہ بانٹ سکے، بات کر سکے، اور اس وقت جو ان پر غم کی کیفیت ہے، جو غم سے وہ نڈال ہیں، تو ان میں کچھ بہتری آ سکے۔ اچھا شاہد سپرا، یہ بھی بتائیے گا عطا اللہ تارڑ کی ملاقات ہوئی، میاں شہباز شریف سے خاصی لمبی یہ ملاقات تھی، تو اس کا بھی احوال بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, इस मुलाकात का बुनियादी मकसद यही था कि जो इंतज़ामात हैं उनको किस तरह हतमी शक्ल देनी है। इसका बुनियादी मकसद था कि मशावरत की जाए मियाँ शहबाज शरीफ से, मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ से कि तदफीन कहाँ पर होगी और नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाएगी, जस्ते खाकी को किस तरह पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन जब पंजाब हुकूमत की जानिब से अताउल्लाह तारड़ को इजाज़त दी गई और तीनों रहनुमाओं की आपस में मुलाकात हुई तो उसमें 2 पॉइंट जो है सामने रखे गए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि जस्ते खाकी को कब मुंतकिल किया जाएगा, चूंकि अताउल्लाह तारड़ की जानिब से बताया गया है कि एक नमाज जनाजा जो है वो लंदन में अदा की जाएगी, जबकि दूसरी जो नमाज जनाजा है वो लाहौर में होगी। तो इस पर अब मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से गौर किया जा रहा है कि मामूल की फ़्लाइट पर जो जस्ता खाकी है बेगम शमीम अख्तर का उसको लाहौर मुंतकिल किया जाता है या फिर एयर एम्बुलेंस का ऑप्शन भी मौजूद है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि पे रोल पर जो रिहाई की और हमजा शहबाज शरीफ की वो कब से शुरू करनी है। तो इस पर अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया कि 14 से 15 रोज़ की जो कोशिश की जाएगी कि पे रोल पर रिहाई ली जाए, चूँकि ताज़ियत के लिए भी लोगों ने आना है, नमाज जनाजा की अदायगी भी होनी है। लेकिन ये जस्ते खाकी की पाकिस्तान मुंतकिली से इसको मशरूत किया गया है कि अगर बुध को जस्ते खाकी पाकिस्तान मुंतकिल होता है तो मंगल से पे रोल जो है वो हासिल किया जाएगा और उसके बाद 14 से 15 दिन की कोशिश की जाएगी क्योंकि पे रोल हासिल किया जाए और मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ हमजा शहबाज शरीफ को जेल से रिहा करवा कर उनको घर मुंतकिल किया जाए और वहाँ पर नमाज जनाजा की अदायगी में भी वो शरीक हो सकें और उसके साथ ताज़ियत के लिए जो आने वाले लोग होंगे उनसे मुलाकात भी वो कर सकेंगे। जी। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात हम जानते रहेंगे। शहबाज शरीफ यकीनन गम से निढाल दिखाई दे रहे हैं और जेल में हमजा शहबाज को अपने वालिद शहबाज शरीफ के साथ रहने की इजाज़त मिल चुकी है। राजा बशारत की जानिब से बाकायदा तौर पर उनको अपने वालिद के साथ मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी गई है क्योंकि शहबाज शरीफ की तबीयत भी खासी नासाज थी और इस इंतहाई अफसोसनाक खबर के बाद वो गम से मजीद निढाल हो गए, जिसकी बुनियाद पर राजा बशारत की जानिब से हमजा शहबाज को वालिद शहबाज शरीफ के साथ जेल में रहने की इजाजत दे दी गई है। अलग अलग बैरक्स में वो थे जिनको अब साथ रहने की इजाजत दी गई है। मोहतरमा शमीम अख्तर की वफात इंतहाई अफसोसनाक खबर, जिसकी वजह से तमाम कारकुनान इस वक्त गम से निढाल नजर आ रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की जानिब से भी यही कहा गया कि सदर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा किया जाएगा। इस हवाले से इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अताउल्लाह तारड़ और साथ ही साथ वो पहुंचे कोट लखपत जेल में मियाँ शहबाज शरीफ से और हमजा शहबाज से उन्होंने मुलाकात की। एक तवील मुलाकात थी जिसमें मुशावरत की गई तदफीन के हवाले से कि आया किस तरह उनका जस्ते खाकी जो है वो लाहौर मुंतकिल किया जाएगा, कब किया जाएगा और इस हवाले से जो कानूनी तकाजे थे वो किस तरह से पूरे किए जाएंगे और उनकी पैरोल पर रिहाई के हवाले से भी उनसे मुशावरत की गई कि कितने दिन के लिए ये रिहाई होगी और कब ये दरख्वास्त दी जाएगी, दरख्वास्त में क्या मुतालबा किया जाएगा। और शहबाज शरीफ को ये जो खबर थी वो भी अताउल्लाह तारड़ की जानिब से दी गई, हमजा शहबाज को ये खबर दी गई और साथ ही साथ नवाज शरीफ को भी ये खबर अताउल्लाह तारड़ की जानिब से दी गई, जिसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों गम में निढाल नजर आए और ज़ारो कतार रोते रहे। इसहाक डार रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसहाक डार, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। गम की इस घड़ी में तमाम सिटी न्यूज़ नेटवर्क, सिटी 42, रोही, सिटी 41 और 24 न्यूज़ आपके साथ हैं, नून लीग के साथ हैं, मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस है, क्या कहिएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको बहुत शुक्रिया। इस गम की घड़ी में आप सब ने जो अपने मैसेजेस भी भेजे और आपने अभी जो एक्सप्रेस किया, अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता करें। जी मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा कुछ अरसे से जब से यहाँ आई थी उनकी तबीयत अलील से अलील होती जा रही थी और फिर पिछले चंद दिनों में एकदम से उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा खराबी शुरू हुई और कल रात उनकी तबीयत बिल्कुल ही बेकाबू हुई और आज सुबह फिर वो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक करीबन 2 बजे दोपहर वो अल्लाह को रुखसत हो गई। तो बहुत ज़्यादा भाइयों के, दोस्तों के, पाकिस्तानी अजीज़ों के सब अपने हमारे जितने चाहने वाले हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं। मैं आपके तवज्जुह से मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो ज़ाहिर है कि इस वक्त बड़े ही गमगीन हालत में हैं।
चूँकि उनका पहले आपको याद होगा वालिद मोहतरम उनसे जुदा हुए जब वो इज़राइल में एक दफ़ा थे सऊदी अरेबिया में, फिर जब वो जेल में थे तो उनकी मोहतरमा जो अहलिया थी वो वफात पा गई लंदन में और वो बात नहीं कर सके। और अब उनकी बीमारी की वजह से वालदा मोहतरमा यहाँ आई थी, लेकिन वो खुद भी कुछ महीनों से बीमार हो गई, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक थी। हम भी आते थे, मिलते थे, प्यार करती थी, दुआएं देती थी, लेकिन ये चंद दिनों में बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिटेरियोरेट हुई और ख़ासकर पिछले 16-17 घंटे में फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो आप सबका शुक्रिया जी। अभी तो ये जो मेडिकल एंड फ्यूनरल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हो रही हैं और काफ़ी लोग मैसेजेस करके पूछ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जुह से मैं ये शेयर कर लेता हूँ कि वो अभी फाइनल नहीं है कि कब ये फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल होंगी। नॉर्मली यहाँ 2-3 दिन लग जाते हैं जी। और फिर यहाँ लॉकडाउन की वजह से यहाँ फ्यूनरल की भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ और ख़ासकर यूके से और यूरोप से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, वो अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन यूँ ही कोई लॉकडाउन के हिसाब से यहाँ फ्यूनरल की पता चलेगा। यहाँ इन्होंने नंबर की भी तादाद एक पाबंदी कदम रखी हुई है। तो जो फाइनल होगा फिर आपके तवज्जुह से इंशाअल्लाह, क्योंकि फर्दन सबको जवाब देना और इतला करना बहुत मुश्किल है। तो मैं मशकूर हूँ आप सबका, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और मियां शहबाज शरीफ साहब अभी भी जैसे आपको पता है वो और उनके पोता हमजा तो अभी जेल में है और वो फॉर्मेलिटीज़ शुरू हुई होंगी पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ इस वक्त जो पोजीशन है वो काफ़ी गमनाक है। और फॉर्मेलिटीज़ का जो ही को तय होगा, क्योंकि अभी सबसे पहले ये मेडिकल प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर ऑब्वियसली जो फ्यूनरल के जो प्रोसेस हैं और उसके साथ ही लॉकडाउन को सामने रख के ये जनाजे के हवाले से यहाँ क्या फैसला होगा, फिर इंशाअल्लाह होपफुली एक आध दिन में आपसे शेयर कर लूँगा। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आज जनाजा है, आज जनाजा नहीं हो सकता इस फॉर्मेलिटी की वजह से, और कहाँ जनाजा होगा कब होगा वो एक दफ़ा तफसीलात अवेलेबल हो जाएगी कल तक, तो इंशाल्लाह मैं आपको कर दूंगा जी आपके हवाले से, आपको और आपके नाज़रीन को। जी बहुत शुक्रिया। इसहाक डार साहब ये भी बताइएगा कि आप यकीनन शरीफ फैमिली से राब्ते में हैं, तो आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। कल नमाज जनाजा जैसा कि आपने बताया अदा की जाएगी लंदन में 2 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो लाहौर में कब नमाज जनाजा अदा करने का अभी तक इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, और साथ ही साथ मियाँ नवाज शरीफ की तबीयत कैसी है? जी एक तो ये है कि अभी मोहतरमा लाहौर में तो फाइनल नहीं, अभी तो लंदन में जो नमाज जनाजा होगा उनकी बॉडी भेजने से पहले, तो अभी उसका भी फैसला फाइनल नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहले मेडिकल फॉर्मेलिटीज़, फिर फ्यूनरल फॉर्मेलिटीज़, यहाँ जो गवर्नमेंट के अपने जो सारा प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा, और फिर आजकल लॉकडाउन की वजह से फ्यूनरल पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ जब होंगी तो फिर ये पता चलेगा कि बॉडी यहाँ से कब पाकिस्तान जा सकेगी, और फिर पाकिस्तान में नमाज जनाजा कब। अभी कम से कम मेरे नज़दीक ये 3 रोज़ से कबल ये सारा काम मुमकिन नहीं है जी। इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ का और मियाँ नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है, क्या गुफ्तगू हुई है? दोनों भाई, माँ जैसा लॉस हुआ, दोनों भाई गम में निढाल नजर आए। जी इसी तरह है जी, हम यही यहाँ देख रहे हैं कि वो बहुत इमोशनल थे दोनों भाई जब बात कर रहे थे। जाहिर है कि माँ का साया उठ जाए तो वो तो काबिल बर्दाश्त नहीं होता, एक दुआओं को मंबा होती है माँ, तो काफ़ी यहाँ जज्बाती है जी सारा मंजर। तो अल्लाह बस सबकी वालदैन को सलामत रखें और उनका साया कायम रहे, लेकिन हर एक ने एक दिन जाना है और ये भी एक अल्लाह का हुक्म था। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की अभी तो डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं देंगे जी, क्योंकि उनकी तो अपनी चंद दिनों से किडनी की बहुत एक नई इशू बनी हुई है, और अभी वो जुमेरात को भी हॉस्पिटल गए हुए थे, और तो पिछले हफ्ते में 3 दफ़ा उनकी वो अभी फैसला नहीं कर पाएगा, उसके लिए प्रोसीजर करेंगे या क्या करेंगे, दवाइयाँ दे रहे हैं। तो अभी बस मैं समझता हूँ कि कल तक ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी कि ये बॉडी कब जा सकेगी
लंदन में कब जनाजा होगा और पाकिस्तान में कब फिर इसहाक डार साहब, ये फ्लाइट कब इंतकाल पहुंचेगी। उनका कब हुआ था? आप तक ये खबर कब पहुंची? जी, आज सुबह 7 बजे के करीब यूके टाइम, जो पाकिस्तान में 2 बजे यहाँ फजर होती है जी, करीबन सुबह 6 सवा 6 जी बजे, जी। और सनसेट करीबन 7:30 बजे होता है। तो आप समझ लें कि फजर के करीब जब हुआ तो हमें फिर फौरी इतला हमें आई, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की बेटी जो मेरी बहू है, फ़ोन उनको आया उस्मा को और हमें, तो हमें वर्चुअली विद इन मिनट्स पता चल गया था, और करीबन आधे घंटे में फिर फैमिली हमारी जो है वो यहाँ पहुँच गई थी। जी, इसहाक डार साहिब, बहुत शुक्रिया। फिर से एक बार मैं कहूँगी कि इस गम में सिटी न्यूज़ नेटवर्क, सिटी मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गईं। मियां नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर का इंतकाल इवनफील्ड हाउस लंदन में हुआ। नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम की दफन लाहौर में की जाएगी। शहबाज शरीफ को उनकी वालिदा हमजा शहबाज को दादी की वफात की इतला दे दी गई। शहबाज शरीफ वालिदा के इंतकाल की इतला मिलते ही ज़ारो कतार रो पड़े। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हुकूमत से शहबाज शरीफ की फौरी तौर पर पेरोल पर रिहाई का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून का पेरोल पर शहबाज शरीफ की रिहाई के लिए दरख्वास्त देने का फैसला। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को पेरोल पर रिहा किया जाएगा। महकमा कानून शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को दरख्वास्त मौसूल होने पर पेरोल पर रिहा किया जाएगा और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को जनाजा में शिरकत के लिए रिहा किया जाएगा। महकमा कानून की जानिब से यह भी कहा गया है कि बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर नवाज शरीफ को पेरोल पर रिहा किया गया था। आपको आगाह करे हैं अफसोसनाक खबर के हवाले से, कायदे मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। मियां नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर का इंतकाल इवनफील्ड हाउस लंदन में हुआ। नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम की तदफीन लाहौर में की जाएगी। शहबाज शरीफ को उनकी वालिदा हमजा शहबाज को दादी की वफात की इतला दे दी गई है, जबकि शहबाज शरीफ वालिदा के इंतकाल की इतला मिलते ही ज़ारो कतार रो पड़े। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हुकूमत से शहबाज शरीफ की फौरी तौर पर पेरोल पर रिहाई का मुतालबा, जबकि मुस्लिम लीग नून का पेरोल पर शहबाज शरीफ की रिहाई के लिए दरख्वास्त देने का फैसला। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को पेरोल पर रिहा किया जाएगा। आपको आगाह करे हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम शरीफ इंतकाल कर गई हैं। सूबाई सदर पंजाब मुस्लिम लीग नून की जानिब से वफात पर इजहार अफसोस किया गया है। यानी सब लोगों को जो पार्टी के यानी अहदेदार हैं, कारकुन हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, बल्कि पूरी कौम को जो है वो इस मौके के ऊपर इंतहाई अफसोस है और सबकी दुआ है शरीफ फैमिली के लिए कि अल्लाह ताला उनको जो है वो सब्र जमील अता फरमाए और मरहूमा को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मरहूमा बहुत इबादत करने वाली, बहुत नेक और बहुत मुखय्यर खातून थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो अपने यानी मियाँ शरीफ साहब के ज़माने में भी उन्होंने जो है वो बहुत एक खुशहाली का दौर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाया और उसके बाद अल्लाह ताला ने एक बार नहीं 3 बार उनके बेटे मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा वज़ीर आज़म से नवाजा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब 2 मरतबा वज़ीर आला रहे, तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में बहुत शुक्रिया आपका। अभी अगला सवाल तो यह है कि यहाँ से बॉडी कब मुंतकिल की जाएगी, क्या प्रोसेस होगा, जनाजा कब तक मुतवक्किल है? बॉडी तो अगले 1 घंटे में रीजेंट मस्जिद में शिफ्ट हो जाएगी। ये जो डॉक्टर देख रहे हैं इन्होंने सर्टिफाई करना है, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और फिर कल है जनाजा का अमकान और कल शाम को जो है ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट पे है अरेंजमेंट के वो बॉडी चली जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने सर्टिफिकेट में कॉरोनर को रिफ़र किया क्योंकि चूँकि घर में डेथ हुई है
तो उसमें ज़रूरी होता है कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो डिटरमिन की जाए, तो फिर उसमें एक दिन के डिले का ख़तरा है, लेकिन इम्कान है कि सर्टिफिकेट अभी हो जाएगा और बॉडी शिफ्ट हो जाएगी और कल शाम को वो चले जाएंगे पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी कोई शरीफ फैमिली से किसी से बात हुई? अगर जैसे आपने कहा कि कॉर्नर के इजरा में कोई तखीर होती है तो फिर डेफिनेटली ये 2 दिन का लग जाएगा। लीगली कितना टाइम रिक्वायर होता है डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करने के इस तरह केस में? लीगली जो है वो तो तरीकाकार यही होता है कि अगर इन्होंने ये कह दिया कि कॉज ऑफ डेथ जो है इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है, और जिसका इम्कान है क्योंकि वो उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, फिर बीमार थी, और मेरा राब्ता है, तो मैंने ये भी डॉक्टर को कहा है कि मैं उनको देखता रहा हूँ और वो शी वॉज नॉट वेल, तो काफ़ी इम्कान है कि वो सर्टिफिकेट अभी ही डेथ सर्टिफिकेट जो है वो मॉर्चरी के हवाले कर देंगे, और फिर उसके बाद जो है वो जनाजा और जो है नमाज जनाजा उसका इंतज़ाम कल का है, और फिर उसके बाद वो ट्रैवल हो जाएगा उनका। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर डेथ सर्टिफिकेट अभी मिल जाता है तो फिर आउट ऑफ इंग्लैंड और कॉर्नर सर्टिफिकेट के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा? वो तो इमीडिएट ये जो है लोग आए हैं ये अभी ही दे देंगे सर्टिफिकेट। अगर इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत जो कि नहीं है तो सर्टिफिकेट अभी मिल जाएगा। वो एक ग्रीन सर्टिफिकेट होता है जो कॉर्नर का ऑफिस का होता है, उसमें क्लियरेंस होती है कि बॉडी कैन बी शिफ्टेड। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि ज़्यादा इम्कानात इसी चीज़ के हैं कि जो डेथ सर्टिफिकेट अभी जारी हो जाएगा और उसी के बेस पर कॉर्नर सर्टिफिकेट और आउट ऑफ इंग्लैंड सर्टिफिकेट भी जारी हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें रूटीन में चलती रहती हैं तो कल जनाजा हो जाएगा और कल शाम की जो ब्रिटिश एयरलाइन की फ़्लाइट है लाहौर के लिए उसमें मुतवक्का है कि डेड बॉडी लाहौर के लिए रवाना कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई डिले होता है किसी कानूनी कार्रवाई के दौरान तो फिर एक दिन और इंतजार करने पड़ेगा अगली फ़्लाइट के लिए। जी बहुत शुक्रिया वकास अहमद। खबरें और भी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम शरीफ इंतकाल कर गईं। मरहुमा के इंतकाल पर चौबा टेक सिंह में मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक भी मौजूद हैं। आपको आगाह करें अफसोसनाक खबर के हवाले से कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शरीफ इंतकाल कर गई। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम शरीफ इंतकाल कर गई हैं। मरहुमा के इंतकाल पर चौबा टेक सिंह में मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक, MP सईद अहमद सईदी, डिस्ट्रिक्ट बार सदर चौधरी नासिर इकबाल की जानिब से दुख का इजहार किया गया है। माएँ सबकी मुश्तरका होती हैं और काबिल एहतराम होती हैं। अल्लाह ताला उनको गिरी के रहमत करे और मियाँ साहबान को और सारी फैमिली को अपने सब्र जमील अता फरमाए। तो मैं समझता हूँ कि वालदा बड़ी अजीम थी, उसने अपनी औलाद के आखिरी उम्र में बहुत दुख देखे हैं। हम अखबारात में TV पे देखते रहते हैं, वो बुढ़ापे में भी अपने बच्चों के लिए दुआ करती रही हैं। अल्लाह ताला ऐसी माएँ सबको नसीब करे। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। मियां नवाज शरीफ साहब की जो वालदा थी वो सब के लिए काबिल एहतराम थी। अल्लाह पाक उन सब को जो है उनका सदमा बर्दाश्त करने की जो है वो उनको लाहिकीन को वो हिम्मत दे और मरहुमा को जो है वो अल्लाह जन्नत नसीब करे और बाकी जो उनका ख़ानदान है उनको सबको जो है उनकी जो मौत वाक़ई हुई है उनका सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अभी पता चला है कि मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा इंतकाल कर गई हैं। वालदैन और ख़ास तौर पे वालदा का जो रिश्ता है वो बड़ा ही अहम रिश्ता है। तो हम तमाम साथियों समेत गहरे दुख और उनके रंज में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। सियासत तो ज़ाहिर बात है हर इंसान की अपनी जगह पे है। हमारा तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन हर इंसान ने एक दिन इस दुनिया से जाना है। हम उसके दुख के बराबर के शरीक हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 4 दिसंबर को होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से मामला तय किए गए हैं। वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से साबिक MPA मलिक नवाज का क्या कहना है, बता रहे हैं फजील अहमद। जी फजील, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का होने वाला 4 दिसंबर को वर्कर कन्वेंशन के हवाले से आज अहम इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो डिवीजनल और ज़िला के जो अहदेदारान हैं उन्होंने शिरकत की है। और जो वर्कर कन्वेंशन होने जा रहा है क्रिसेंट ग्राउंड में, उसके हवाले से अहम मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। साबिक MPA मलक नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी मलक साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, वर्कर्स कन्वेंशन होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून का, और टफ टाइम देने का जो एक मामला है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से शुरू कर दिया गया है इस हुकूमत को, आप क्या कहेंगे सवाल? जी इंशाल्लाह ये 4 दिसंबर को प्रोग्राम होने जा रहा है और इंशाल्लाह ताला ये बड़े भरपूर तरीके से और भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह होगा। उसमें ये वर्कर कन्वेंशन ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो हमारे अपोनेंट है वो महसूस करेंगे कि ये किसी भी जिस तरह PDM का जलसा था उसी टाइप का इंशाल्लाह जलसा होगा, जो कि जो जोश और वलवला हम अपने वर्करों में, वोटरों में, सपोर्टरों में देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये किसी लिहाज से भी उन जलसों से कम नहीं होगा। तो आज हमने ये जो हमारी पंडाल कमेटी बनी है उसमें सारे दोस्त अभी मौजूद हैं, तो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब कल सुबह मौका पे जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो वहाँ कल जाके डिसाइड करेंगे कि कितनी चेयर लगाएंगे, स्टेज कहाँ पे होगा, जो हमारे जो कायदीन आ रहे हैं तो उनको किधर से लाया जाएगा, ये सारे जितने भी मामलात होते हैं ये इंशाल्लाह कल मौका पे जाके डिसाइड करेंगे। और इंशाल्लाह ये जो अभी आपने दोस्तों का जोश और वलवला देखा है तो इससे इंशाल्लाह हमें उम्मीद वासिक है उस रहीम और करीमजाद से कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह फैसलाबाद ने पहले भी ये साबित किया है कि मुस्लिम लीग नून का या मियां नवाज शरीफ का फैसलाबाद दूसरा घर है, और इंशाल्लाह इसका अमली सबूत हम इंशाल्लाह 4 दिसंबर को देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, इसका अमली सबूत जो है 4 दिसंबर को होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन में दिया जाएगा। और ये नाम का वर्कर कन्वेंशन है, लेकिन जो PDM के जलसे हो रहे हैं किसी सूरत भी उन जलसों से वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो कम नहीं होगा। जी ठीक है फजील, बहुत शुक्रिया। PTI MNA पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फरूख हबीब का कहना है अपोजिशन जमातें अवामी मुफाद के लिए नहीं NRO लेने के लिए तहरीक चला रही हैं। कोरोना वबा के पेश नज़र PDM के तमाम जलसे जुलूस बंद होने चाहिए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा उमैर असमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी अपोजिशन जमातों की जानिब से PDM के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जा रही है और गुज़िश्ता दिनों में गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात के नताइज के बाद से भी अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत पर धांधली के इंतजाम लगाए जा रहे हैं, एहतजाज किए गए हैं। और मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन भी करने जा रही है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मियां फरूख हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी धांधली का इल्ज़ाम एक बार फिर आप पे आयद किया गया है 2018 के इंतखाबात के बाद से। दूसरा, 4 तारीख को PMLN फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन करने जा रही है। वो उनका कहना है कि एक बड़ा पावर शो होगा, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखें, पहली बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो जो इनका इदारों के ख़िलाफ़ बयानियाँ हैं वो अवाम ने मुस्तरद कर दी है। दूसरा, आप देखें कि इससे बड़ा और क्या दोगलापन होगा कि मरीम नवाज़ और जो बिलावल जरदारी हैं उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ वहाँ पर मुहिम की है, और आप देखें कि इनको वहाँ से सिर्फ 2-2 सीटें मिली हैं। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान के पैगाम के ऊपर जो है वो लब्बैक कहा, उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया। आपने देखा कि अक्सरियत जो है वो वहाँ से PTI को मिली, और वहाँ से 4 आज़ाद उम्मीदवारान ऐसे हैं जो जीते हैं जिन्होंने PTI के टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ था। अब तमाम आज़ाद उम्मीदवारान भी PTI में शामिल हो चुके हैं, और हमारे अरकान भी की तादाद मिलाकर तो अब बड़ी आसानी से गिलगित बल्तिस्तान में हम अपनी हुकूमत बना सकते हैं। और इनका जो बयानिया है वो पिट चुका है, मुस्तरद हो चुका है। जहाँ तक रही बात वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से, तो जो बुनियादी मसला है कि इस वक्त PDM ने जो कि NRO लेने के फाइटिंग फोर्स होती हैं भाइयों के लिए और अगली औलाद के लिए, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी। और बाज़ औक़ात अगर कोई बात जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई ऐसी बात होती थी तो वो वालदा को इन्वॉल्व भी कर लेते थे। तो जाहिर है उनको पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे बहुत बड़ा भी नहीं होता। तो
भाइयों में बड़ा अच्छा बॉन्ड है, लेकिन जो सबसे स्ट्रांग उनके दरमियान लिंक था वो वालदा की वजह से था, और वालदा के जाने के बाद उन्हें अपने जो ज़ाती लिंक्स हैं आपस में दो भाइयों के, उन्हें बढ़ाना होगा, मगर ना माँ जो थी वो हमेशा ज़ाहिर है उन्हें इकट्ठा रखने के लिए एक बॉन्ड के तौर पर किरदार अदा करती थी। सुहेल भाई साहब, ये भी बताइएगा कि आपकी उनसे मुलाकात रही है, बेगम शमीम अख्तर के किरदार पर रोशनी डालिएगा, आपने उनको किस तरह देखा? जी, मैं जब जद्दा मैं अपनी किताब लिख रहा था तो उस जमाने में भी मेरी उनसे मुलाकात रही, बाद में भी मियाँ साहब ने 2-3 दफ़ा उनसे मुलाकात करवाई, और बेगम साहबा एक घरेलू खातून थी, कोई ज़्यादा सियासत के बारे में तो उन्हें इल्म नहीं था ज़्यादा, और मियाँ शरीफ साहब एक पेट्रियार्क थे, वो घर के सारे मामलात को, सियासत को वो ज़रूर देखते थे और उसमें मशवरे भी देते थे, और ये अपने बेटों की सेहत, सलामती, तरक्की उसके बारे में ज़ाहिर है दुआगो भी रहती थी, और कोशिश करती थी कि जिस किसी के साथ भी ज्यादती हो उसका हक जो है वो उसको दिलाएं। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी अपनी ताकत तो अपनी माँ से डिराइव करते थे, और जब भी कभी उन्हें कोई मुश्किल पेश आती थी तो वो अपनी वालदा के ज़रिए उन मामलात को ठीक करने की भी कोशिश करते थे। सुहेल भाई साहब, कैसी जिंदगी गुजारी बेगम शमीम अख्तर ने? क्या सियासी तौर पर भी वो अपने बेटों के साथ मुतहरिक रही? नहीं, सियासी तौर पर तो मेरा ख्याल है उनका कोई रोल नहीं था, जिस तरह बेगम कलसूम साहबा का रोल रहा या मियाँ शरीफ साहब का रोल रहा, उस तरह बेगम शमीम अख्तर का रोल नहीं रहा, लेकिन नवाज शरीफ के बड़े। जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे इस अफसोसनाक खबर पर। न्यूज़ स्टूडियो से सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। उन्होंने भी इस लम्हे पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालिदा शमीम बेगम के इंतकाल पर मुस्लिम लीग नून और उनके तमाम ओहदेदारान जो हैं वो इस वक्त दुख का इजहार कर रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर के बस्ती इलाके मोहल्ला घड़ा में कायम लाइब्रेरी पार्क हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। पार्क में लगी सोलर लाइट्स कई माह से बंद है। रात के औकात में सैर व तफरीह की गर्ज से आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यूयॉर्क के मरकजी इलाके मोहल्ला गढ़ा में, और यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से लाइब्रेरी पार्क तो बनाया गया है, लेकिन जो सहूलियात है वो नाकाफ़ी हैं। रात के औकात में सैर व तफरीह की गर्ज से आने वाले जो शहरी हैं उनको अंधेरे और तारीकी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर लाखों रुपए मालियत की जो सोलर लाइट्स लगाई गई हैं वो गैर फाल हुई पड़ी है। इस बात से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, हमसे भी बात करते हैं। बजन बताइएगा, जो सोलर लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं वो ख़राब पड़ी हैं, अंधेरे और तारीकी का राज इस पार्क में है, क्या कहते हैं? जी, इसी तरह ये शहर का मेन पार्क है, मेन शाहराह है शहर की। यहाँ पे फैमिली आती हैं, बच्चे आते हैं, छोटे फैमिली होती हैं। इसी ये लाइटिंग की वजह से जो सोलर इन्होंने लगाई है ये बिल्कुल काम करना छोड़ गई हैं, और उसी वजह से जो फैमिलीज हैं वो आ ही नहीं रही, इस तरफ का रुख ही नहीं कर रही फैमिली, क्योंकि फैमिली को खतरा है कि अंधेरा है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़, बच्चों को कोई भी चीज़ काट सकती है, तो इसी वजह से कोई फैमिली इधर नहीं आ रही शहर। ठीक है अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया।